शुभ नवमी। मैं वेंड्रिला आपका स्वागत करती हूँ इन टुडेज एपिसोड ऑफ द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। एक ऐसा शो जो सिर्फ और सिर्फ आपके जरूरतों के लिए बनाया गया है टू हेल्प यू इन योर प्रॉपर्टी सर्च जर्नी। This show is an initiative by Khabar Samay in association with GFS Realtors, which is a leading name in the field of real estate that deals in residential and commercial projects. In this show, we not only provide you information about property, but we also bring to you the news related to property. और आज के जो न्यूज़ है वो हम जान लेंगे मिस्टर देबाशीष भट्टाचार्य जी से, जो GFS Realtors के जनरल मैनेजर है। So please go ahead with the news. Thank you, Indrila. Hi guys. After the tremendous response of these last episodes, I'm sure all of you must be waiting anxiously to know the pros and cons of real estate, what is going on in Siliguri and adjacent area. Let us start with the good news. That is, housing sales is likely to rise 35% sequentially in festive seasons across top 7 markets. And the property registration in Delhi, as for example, which crosses pre-COVID-19 levels in September. The upcoming festive season sees a very good demand coming in residential segment in Siliguri especially. Enquiries have really picked up by more than 25 to 30% as surveyed out by GFS Realtors and their esteemed team members. If you look at the prices of residential plots in Uttarayan township, that is swinging up in the last week with increased demand. Not only that, a couple of commercial projects are also that is slotted to be launched in Shebak Road and Bardhaman Road locality in this, that is Durga Puja's that is festive seasons. That is a very good news for Siligurians. I request interested people can keep an eye to get good investment options. That is all that is related to these other episodes. Wait for the next, that is excitements. जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हर एक एपिसोड में आपके लिए रहेगा एक खास ऑफर। आज के एपिसोड में भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऑफर, जिसके लिए आपको शो के एंड तक रुकना पड़ेगा टू नो मोर अबाउट द ऑफर। सो प्लीज बी विद अस टिल द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। आगे बढ़ते हैं। इन आवर लास्ट एपिसोड वी गॉट फ्यू क्वेरीज रिगार्डिंग GST, तो हमने सोचा आपको आज के एपिसोड में GST के बारे में कुछ जानकारी दी जाए। तो इसीलिए आज हमारे बीच मौजूद है मिस्टर संजय गोयल, हु इज अ पार्टनर ऑफ Mr. Anand Sanjay and Associates, and who is a chartered accountant with an experience over 20 years. He has been the past chairman of Siliguri branch of EIRC of ICAI, and he holds wide knowledge of income tax, GST and finance. तो सर हमें बताएंगे GST के बारे में, GST के बारे में जो डिटेल जानकारी प्रॉपर्टी लेने से पहले या प्रॉपर्टी लेने के लिए जरूरत है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे मिस्टर संजय गोयल जी से। हेलो सर। थैंक यू एंड्रिला। सो सर, आप हमें GST के बारे में, अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है उसे क्या मालूम होनी चाहिए और क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में आप हमें बताइए। Well, thank you very much. Thank you for having us here. Well, when we talk about GST, there's a lot of query in the minds of a lot of people कि जब अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उनके ऊपर में ये GST कितना परसेंटेज लगेगा, ये because this is a part of the cost element. So let us divide this into 3 basic segments. One is the residential, the other is the commercial, and the third segment is the land segment. GST rates इन तीनों में अलग अलग है। जब हम रेसिडेंशियल की बात करते हैं तो रेसिडेंशियल सेगमेंट्स में बेसिकली आज के डेट में GST दो रेट्स हैं। वन इज द 5% एंड द अदर इज द 1% रेट ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। 1% किस पे है? 1% इज एप्लीकेबल फॉर ऑल अफोर्डेबल हाउसिंग एंड 5% फॉर ऑल अदर प्रॉपर्टीज विच फॉल बियॉन्ड द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट. This is generally applicable only for the under construction property where the completion certificate has not come. If any property which is complete and which is ready to move in, and in that particular project a completion certificate has been issued by the respective authority, then in such cases GST is not applicable. And in case of resale transactions,
also GST is not applicable in the residential segment. जैसे कि मैंने बोला कि 1% rate is applicable for the affordable housing segment. So what is affordable housing segment and for people of Siliguri? For people of Siliguri, affordable housing segment में आने के लिए एक property को it needs to fall within 90 square meters of carpet area. When we talk about 90 square meters of carpet area, we are talking about RERA carpet area, and the total value of that property should not exceed 45 lakhs. Both the conditions should be satisfied. If the property is less than 90 square meters but the value is more than 45 lakhs, then it is not an affordable segment, and then the rate of then the GST rate would come to 5%. So both these conditions should be cumulative and both these conditions should be satisfied for that property to fall under the affordable housing segment. And other than affordable, I have already said the rate is GST rate is 5% on that. This is all about the residential part. Another part is the commercial part. When we talk about the commercial property, the GST rate is 12% on the commercial property, and here the builder is allowed to take an input tax credit also. When we are talking about the residential segment of 5% and 1%, the builder was not allowed to take any ITC on that. There is another segment other than residential and commercial, which is a mixed segment, which is referred to as a residential real estate project. These are projects in which the total commercial area, it's a mixed development of residential and commercial, where the total commercial development is not more than 15% of the total carpet area of that particular project. In these projects, if the total commercial development is less than 15% of the total carpet area of the project, then in these projects the rate in case of GST for the commercial part would be 5%. So this is the difference. Generally it is 12% for the commercial, but for the residential real estate project the rate would be 5%. This was all about the sale of residential and commercial. Now let us talk about the rentals. In case of rental property, the GST on commercial property where you are getting rentals is 18%. But GST on the residential rent is fully exempt. There is no GST if somebody is getting rental incomes from a residential property. So we talked about the residentials, we talked about the commercial. The third part where the GST element, there's a lot of query which keeps on coming in this particular part also, Vendrella, is the land segment. Yes, sir. See, GST is actually not applicable in land as per the Act. But there has been a lot of discussion going on where people have queried what happens in case of plotted development, where a builder is developing a huge plot of land and dividing it into small parts and selling it to people. Yes. So there were some rulings which have come in recently from the advanced ruling, where they have said that in case of plotted development there is a GST element. But since land is kept out of the purview of GST, we personally feel that it all depends on the way the developer is projecting that particular property. If he is selling it with development, then in such cases definitely the GST element might come in. But if he is just selling the land part, then absolutely, since land is out of the purview of GST, there would not be GST. But then there is a small litigation, a small matter of discussion on this, so there will be difference in views. But if it is purely sold as a land, there is absolutely no case of GST in this. So I think this is all that we wanted to share with you. I think this will give you a fair idea to the property buyers as what is the GST, what is the cost that they will be bearing in terms of the GST for the residential, commercial and the land segment. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक हमारे दर्शकों को काफी जानकारी मिल गई आपसे बात करके, बिकॉज रिगार्डिंग जीएसटी आम आदमी को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, मगर विथ you we got the information regarding GST. So I hope this is helpful to the viewers of the property real estate की बात. Before we move forward with our next segment, आगे बढ़ने से पहले एक खास न्यूज है आप सभी के लिए. GFS Regis लेकर आ रहा है एक खास कॉन्टेस्ट. इट इज अ फोटो कॉन्टेस्ट जिसके बारे में जानने के लिए आपको शो की एंड तक रुकना पड़ेगा. So please be with us till the end because an amazing photo contest is coming up your way. Moving forward, आगे बढ़ते हैं with the hot properties in Siliguri. तो सर हमें बताएंगे सिलीगुड़ी में फिलहाल अवेलेबल हॉट प्रॉपर्टीज के बारे में. देवाशीष सर, प्लीज गो अहेड. Yeah.
This time I have a very that is hot property in my that is bags. I'm unfolding to this. First property comes out from Luminia. It is a 3,287 square feet, 5 BHK flat in Uttarain, and it is fully that is Vastu compliant. It is in the lower floor. The price you can know after that is call us on GFS Realtors in this number 999330 that is 5 times 2. Second sections, it comes out from residential plot that is Srisham farmhouse villa near Fulwari. The landmark is near Dreamland, and it that is comprises 3, 4 and 5 cutters plots. It is a gated community. It is road that is drainage, street lighting is fully developed. Inside road there is the inside road, drainage is there, street lighting is also, there is also there. So it is immediate that is ready for registration. And if you look at the price, it is very much reach within the common man. It is only 3.75 lakhs, that is 3,75,000 per kata. For more inquiry, don't forget to call us on GFS Realtors at 9933022222, that is 993330 5 times 2. The next property, that is hot property, comes out at Space Town in Sevak Road. It is a 4 BHK flat. It is fully compliant as per Vastu, and it is a ready to moving status. The price is very attractive. With the parking and serving quarter, it is available, and call us on the same number. The that is lucrative property also comes out at Mayfair Paradise. The flat size is 1,439 square feet. It is a 3 BHK at Dagapur. It is the hill view. There is you will get a very good hill view, and it is in the main road. The 3 BHK unit, it is on 6th floor. Prices you can know after calling us on 9933022222. Now it comes out at the Uttarain townships, a 6 kata land at the C block. The land is in south facing, so it is also a Vastu compliant that is plot. It is a premium property, as you know. Uttarain, every property is a very premium property. It is ideal for house, and you can know the price after calling us on the same number with the GFS Realtors. आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज लोकेशन। और आज का जो हमारा लोकेशन है दैट इज सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज रीजन। हम लोकेशन पे गए थे, हम उसके बारे में आपको दिखाएंगे भी, मगर उससे पहले हम लोकेशन के बारे में जानेंगे और देखेंगे हाउ the location is advantages and disadvantages to us. So sir हमें लोकेशन के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। Sir please. Right. This time we that is opt out medical college area after Champasari in our last episode. Guys, if you look at this medical college location, it is a very upcoming locations comes out in Siliguri peripheries. Medical college area it is almost a very strong connectivity is been given from airport to railway station to every nooks and corners of the Siliguri. If you look at this airport, it is only 12 kilometers apart from here. NGP station is around 8 kilometers. If you look at the city center, the main attraction of the city, it is only 7 kilometers apart. Siliguri junction is only 8 kilometers. So you can easily reach out any moment at any time within 10 to 15 minutes. There are a lot of good schools, hospitals, markets, cinema halls are very nearby. This is the area particularly preference is for service sector peoples. It is a very fast developing, as you know, because the road condition is very good. It is in Panchayat area and the good connectivity is there, as I already said. It is on Asian Highway 2 and you will get beautiful view, beautiful hill view also from here. North Bengal Medical College and Dishan Hospital is very nearby. It is within that is circle of 1 kilometer. Upcoming township is Tista, which also that is added a feather to his cap of this location. Basic School, St. Joseph School and City Center is very nearby. And Siliguri College of Commerce Wings is also opening very soon over there.
तो सर आप हमें बताइए सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज रीजन के आसपास जो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ इन्फॉर्मेशन अगर दे पाए. So Abdullah, if you look at the development part of this area, you will be very much surprised, right? Because the flat area that is comprises from rupees 2,000 to 3,000 per square feet, and you will get 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, all kinds of flats here, and the flat ranging from 450 square feet to 1,300 square feet, and G+7 story building is also available here. Yes. There are 5 to 6 big residential projects very upcoming here. 8 to 10 small projects are also that is featuring projects with luxurious amenities you will get over here. And the 3 major players are dominating right at this moment in this locality. One is SBL Group, one is PRM Begraj, and other is MB. If you look at this connectivity, it has got that is creative connectivity from all parts of the Siliguri. Kavakhali is very developing as a big education and health residence part of Siliguri. Prices in this location are still very, very reasonable, with the flats starting at as low as 8 lakhs, that is total amount of. Fulbari, which is very likely to develop as a smart city, is very nearby from medical college. Sri Sri Ravi Shankar Ashram is also, there is a place where everyone can visit. A hot location, it has been considered for people from Siliguri, Bihar, Assam, South Bengal and other parts of North Bengal also. It is the most preferred route for travel to the Bagdogra airport because it is very nearby. Without any obstacle, you can easily reach out Bagdogra airport within a very short time. It is ideal destination for investment also because lower price, you can invest right at this moment and will get good dividend within very short time. The only cons is here, it is the local transportation in terms of private buses is a bit less in some parts at this point of time, but I'm sure the way it is developed, within no time, every that is cons will be solved here. Particularly these cons, the buses will be more, so you will be more that is convenient to reach out to Siliguri any other parts. थैंक यू सो मच सर. जैसा कि सर ने बहुत सही कहा कि दैट रीजन होल्ड्स ग्रेट पोटेंशियल क्योंकि एक ऐसा रोड है जो कनेक्ट्स फ्रॉम एनजीबी रेलवे स्टेशन टू द बागडोगरा एयरपोर्ट विच प्रोवाइड्स फॉर अ ग्रेट कम्युनिकेशन. तो सर अगर आपको रेट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या रेटिंग दोगे टू द Siliguri Medical College region? Very good question, Anila. In fact, if you look at these facilities, it should be rated as a 5-star. But now we are rating it as a 4-star because there are a lot of there is commercial project is yet to come over here. If commercial projects are there, then it will be very good property, very good locations, and it will be rated as a 5-star. थैंक यू सो मच सर. तो आपने सुना लोकेशन के बारे में. हमने इस लोकेशन पर कुछ रिसर्च किए हैं और one particular property really stood out to us that was significant in the Siliguri Medical College region. Sriniketan by PRM Begraj and BL Goel Group. So आइए चलते हैं प्रॉपर्टी साइट पर और देखते हैं what are the facilities and amenities they are coming up with. The said property is under construction. So हम बात करेंगे और जानेंगे उनके डेवलपर से भी कि प्रॉपर्टी में वो लोग क्या प्रोवाइड करेंगे और क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर. तो आइए चलते हैं साइट पर और देखते हैं दी श्रीनिकेतन बाय PRM बेगराज ग्रुप एंड BL गोयल. आज के एपिसोड में हम पहुंच गए एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन जो शहर के नजदीक है मगर एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही खूबसूरती है इस जगह की. और अगर आप देखें एक पॉजिटिव वाइब मिल रहा है क्योंकि मेरे पीछे एक खूबसूरत सा आश्रम है जो कि रविशंकर जी का आश्रम है. तो इसीलिए इस जगह का जो माहौल है बहुत ही पॉजिटिव है, खूबसूरत है. और इस जगह पे एक नया प्रॉपर्टी बन रहा है जो कि श्रीनिकेतन विच इज अ प्रोजेक्ट बाय PRM बेगराज एंड BL गोयल. सो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी को और इस माहौल को एंजॉय करते हैं और जानते हैं इस ग्रुप के बारे में और श्रीनिकेतन के बारे में.
ये हाल ही में शुरू हुआ है प्रोजेक्ट? जी जी, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। तो जितना कि मैं जानती हूँ यहाँ पे करीब 200 फ्लैट्स बन रहा है। जी, 202 फ्लैट्स बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड 2 BHK 3 BHK बोथ? जी, 1 BHK 2 BHK एंड 3 BHK बन रहे हैं। ऑलराइट। और यहाँ पे आप लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको यहाँ पे ब्रोशर में थोड़ा दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कैसे किस तरह से बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरह से है ये। यहाँ पे टोटल 10 क्लस्टर हो रहे हैं, 202 फ्लैट्स। तो क्लस्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से आएगा, जो ये साइट है यहाँ पे भी इसी तरह से ये बनेगा। और बीच में हम लोग गार्डन प्रोवाइड कर रहे हैं, लैंडस्केप गार्डन, जिसमें एमिनिटीज़ वगैरह होगा, बैठने के लिए कबानास वगैरह, गजीबो, किड्स प्ले एरिया, ये सब ये गार्डन में बनेगा। और इसके साथ ही एमिनिटीज़ में हम लोग स्विमिंग पूल, क्लब हाउस दे रहे हैं, जो कि वहाँ पे होगा। और यहाँ पे कम्युनिटी हॉल, क्लब हाउस में कम्युनिटी हॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, जिम, किड्स प्ले एरिया और स्विमिंग पूल, ये सब रहेगा। तो आप लोग एक कंप्लीट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, मगर शहर से दूर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे उन्हें बाहर ना जाना पड़े, इसलिए आप लोग शॉपिंग फैसिलिटीज़ से लेके जो भी नेसेसिटीज़ है आप लोग सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जी। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, और हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि अगर आप बाजू में देखेंगे तो यहाँ पे एक रविशंकर जी का आश्रम है, जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाता है और इस जगह को एक पॉजिटिव वाइब मिलता है इससे। तो आप अगर यहाँ पे ऐसा लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको सुकून मिले, शांति मिले, दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर यू ऑल। अगर एक ऐसा प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको खूबसूरती के साथ साथ एक पीस मिले, एक पीस ऑफ माइंड मिले, एंड इस प्रॉपर्टी का अगर हम टैगलाइन देखें तो इट प्रोवाइड्स अ पीसफुल एक्सपीरियंस टू द बॉडी, माइंड एंड सोल। सो इट गोज विद द एटमॉस्फेयर हियर। सो अगर आप कुछ ऐसा लोकेशन ढूंढ रहे हैं, ऐसा प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, दिस इज अप्रोप्रिएट। ये फिलहाल बन रहा है और हमने सुना है कि ये करीब 2-3 साल में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये प्रॉपर्टी, एंड देन इट विल बी रेडी टू मूव इन। तो अभी हम लोगों ने जैसे प्रॉपर्टी का प्लान देखा कि स्विमिंग पूल से लेके क्लब फैसिलिटीज़ तक सारे एमिनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जब बन के तैयार हो जाएगा, ये बहुत ही खूबसूरत एक लोकेशन होगा, एक खूबसूरत प्रॉपर्टी होगा, राइट जी। तो आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर अभी बन रहा है ये 2-3 साल में करीब तैयार हो जाएगा, और then I think this will be an exotic location to stay and live in, because it is a peaceful place with the beauty of nature. And also the complex Srinikethan provides every amenities that one needs to have an satisfactory and good stay. जैसे कि आप सभी ने देखा, आज हम आए हैं श्रीनिकेतन में, और बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, शहर से दूर है, मगर एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। तो आइए इस प्रॉपर्टी के बारे में और भी जानते हैं, और जानने के लिए अभी मैं हूँ यहाँ की जो सीनियर जनरल मैनेजर है ऑफ PRM बेगराज ग्रुप। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे श्रीनिकेतन के बारे में। तो सर, आप हमें बताइए जो प्रॉपर्टी है श्रीनिकेतन, इसके बारे में। देखिए, ये श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी लैंड एरिया है, टोटल 3 एकड़ लैंड है। इस लैंड का ऊपर हम लोग जो कंस्ट्रक्शन अभी चालू किया, जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसका टोटल 10 क्लस्टर में काम होगा। टोटल यहाँ पे 202 नंबर्स फ्लैट है, जिसमें से सिंगल BHK है, 2 BHK है एंड 3 BHK है। अभी यहाँ पे हम लोग आदमी का सुविधा के लिए एक्स्ट्रा जो एमिनिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्लब है, स्विमिंग पूल है, इवन अंदर में एक शॉपिंग एरिया भी, मार्केटिंग भी रहेगा कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। जो भी डेली जो ग्रोसरीज वगैरह जो लगता है, इसके लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा।
और ये अपना ये सराउंडिंग एरिया में नियर जस्ट अपोजिट टू द रोड वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट का एक हेल्थ प्रोजेक्ट आ रहा है। प्लस यहाँ पे एक अपना ये है रविशंकर जी का एक आश्रम है जिसमें से हम लोग नॉलेज ले सकता हूँ, जिसमें से तो एरिया अट्रैक्टिव है। अदर देन दिस इसमें बहुत सारा हम लोग क्वालिटी पैरामीटर मेंटेन कर रहे हैं। बीइंग हम लोग इंजीनियर, इसमें हम लोग कुछ कुछ लेवल में हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्लाइंट लोगों के खुशी करने के लिए हम लोग कुछ क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि इसमें क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, कैसे क्वालिटी मेंटेन करता है। तो हम लोग क्या करता हूँ यहाँ पे मटेरियल जो हम लोग परचेज़ करता हूँ, जैसा रेनफोर्समेंट स्टील, सीमेंट, स्टोन चिप्स, सैंड, ये सब का हम लोग टेस्टिंग खुद कर लेता हूँ। फिज़िकल टेस्ट करना ज़रूरी पड़ता है बिकॉज आजकल जो हम लोग कंक्रीट का स्ट्रेंथ इसका हम लोग डिफाइन करने के लिए क्यूब टेस्टिंग करना पड़ता है, क्यूब लेता हूँ। प्लस और एक एडवांटेज है कि हम लोग रूफ कास्टिंग यहाँ पे बाहर से रेडी मिक्स कंक्रीट मंगाता हूँ बिकॉज लोकल साइड मिक्स कंक्रीट में कभी कभी वो वाटर का प्रॉब्लम आता है, उसमें स्ट्रेंथ प्रॉब्लम होती है। तो स्ट्रेंथ अच्छा मिलने के लिए हम लोग रेडी मिक्स कंक्रीट बाहर से मंगाता हूँ। प्लस मटेरियल को तो हम लोग खुद यहाँ पे सीब एनालिसिस कर लेता हूँ। ये अपना कंस्ट्रक्शन पार्ट में। फिर जब हम लोग फिनिशिंग का काम चालू करेंगे उस टाइम में पोरकट एक चेक लिस्ट मेंटेन होता है। वो चेक लिस्ट है कि जैसा कंक्रीट का टाइम में एक पोरकट बोलते हैं हम लोग, बिफोर पोरिंग ऑफ कंक्रीट उसका रेनफोर्समेंट का चेकिंग, कंक्रीट का टाइम में उसका चेकिंग, स्लाम ठीक आता है कि नहीं, उसमें पानी ज़्यादा आ जा रहा है कि नहीं, ये सब। नेक्स्ट है हम लोग जब ब्रिक वर्क मैसनरी का काम करेंगे उस टाइम में भी हम लोग चेक लिस्ट मेंटेन करते हैं, उसका ओलोन वगैरह मतलब प्लम्बिंग ठीक हो रहा है, प्लम ठीक हो रहा है कि नहीं, प्लास्टर में पानी ठीक दे रहा है कि नहीं, ब्रिक्स ठीक से पानी में भी गीला करके यूज़ हो रहा है कि नहीं, ये प्लस उसका टाइम टू टाइम आफ्टर प्लास्टर उसमें क्योरिंग, ये सारा चीज़ के लिए हम लोग तो चेक लिस्ट मेंटेन करेंगे। पीएच पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का जो काम होता है सैनिटरी प्लम्बिंग का, इसके भी जो पाइप वगैरह का इसका एक चेक लिस्ट आता है। इलेक्ट्रिकल का जो काम होगा उसका भी हम लोग चेकिंग का डिफरेंट स्टेज में पैरामीटर है, उसमें वायर का गेज ठीक यूज़ हो रहा है कि नहीं, स्विच सॉकेट जो यूज़ हो रहा है वो ठीक कंपनी का है कि नहीं, ये सारा चीज़ हम लोग मेंटेन करेंगे। तो इसमें हम लोग यही क्वालिटी के लिए बहुत सारा और चीज़ भी है जो हम लोग मेंटेन करेंगे कस्टमर को खुशी करने के लिए। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज इसमें मिलेंगे। ये बीइंग ए सीनियर जनरल मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप हमने एश्योर कर सकता है कि कस्टमर को, क्लाइंट को हम लोग खुशी करने के लिए ये सब चीज़ जो मिनिमम ज़रूरत पड़ता है ये चीज़ हम लोग मेंटेन करेंगे, ये हम एश्योर कर सकता हूँ। जी सर से बात करके एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी वो है क्वालिटी, और क्वालिटी का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, बहुत ही बारीकी से क्वालिटी का ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। और जब हम लोकेशन में पहुँच रहे थे हमने लोगों से बातचीत की और उनसे भी हमें ये बात पता चला कि जो क्वालिटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी है इट्स prime and it's very good, so which makes this property even more worth having it. So sir, कब तक ये प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन हो जाएगा? रेडी टू मूवमेंट आज से 3 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और फिलहाल में हम देख रहे हैं कि काम चल रहा है, तो कुछ मैसेज जो हमारे चैनल के थ्रू आप दर्शकों को देना चाहेंगे और जो ये प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे उन्हें अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, इसमें हम यही बोल सकता हूँ कि लोगों को रहने के लिए जो घर वो खरीदेगा, बहुत मेहनत करके एक आदमी घर खरीदता है, तो उसमें उसको रहने के लिए इसमें डिफरेंट लाइन में जो फिर रिपीट कर रहा हूँ मैंने कि जो क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, जिसमें कि लोगों के रहने का टाइम में कहाँ से पानी टपक रहा है, डैम्प आ रहा है, ये सारा चीज़ जो है, प्लस स्ट्रक्चर जो मजबूत हुआ है कि नहीं है, ये सब एंगल में एश्योर करने के लिए हम लोग जो कंस्ट्रक्शन लाइन में, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो क्वालिटी पैरामीटर मेंटेन करना पड़ता है, वो सब चीज़ यहाँ पे मेंटेन होगा, ये एश्योर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत कुछ पता चला हमें, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ पता चला इस प्रॉपर्टी के बारे में, एंड दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर हूसोएवर इज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी।
मेरे साथ अभी अंकित अग्रवाल जी हैं जिन्होंने हाल ही में श्रीनिकेतन में फ्लैट लिया है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने श्रीनिकेतन को क्यों चुना? श्रीनिकेतन को चुनने का एक वजह है इसका अपना लोकेशनल एडवांटेज, कि एक ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे हर इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो है, जैसे कि आप एयरपोर्ट मान लीजिए, हॉस्पिटल्स मान लीजिए, स्कूल्स मान लीजिए, बहुत ही नज़दीक में है। और जब भी अपने घर लेते हैं तो ऐसी ही चीज़ें प्रेफर करते हैं कि सब नज़दीक में हो ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। So that is one of the reason I choose this. Second is it is from one of the reputed builders in Siliguri, or that gives a confidence to book a flat in this place. जैसे कि आपने कहा कि श्रीनिकेतन एक रेप्यूटेड बिल्डर के द्वारा बिल्डअप किया गया है, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? Experience was really very good. Initially I got to know about this project from Facebook. Alright. And then I contact the marketing persons. They are very supportive. They give me the total insight of the project, how it is going and by when it shall get completed. और फ्रॉम द इनिशियल प्रोसेस, जैसे साइट दिखाना, वहाँ से लेकर के आपके एग्रीमेंट्स, बुकिंग्स एंड ऑल वाज वेरी स्मूथ। तो आपने ये जो साइट है पहली बार कब देखा था, कब आए थे आप यहाँ पे? इट वाज अराउंड 20 डेज बैक मैं यहाँ पे आया था। इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे दिखाया और फर्स्ट ही इम्प्रेशन में मुझे पसंद भी आया, एंड दैट इज़ द रीज़न आई बुक्ड इट इंस्टेंटली। आई होप कि आप बहुत ही जल्दी यहाँ पे मूव इन कर सके, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल लोकेशन एंड आई थिंक यू विल हैव अ ग्रेट स्टे हियर। Exactly, the views are really good and it's on the prime location, I can say, very close to the national highway, also Asian highway, connecting from both the sides. That gives a very much locational advantage also. और शहर की जो शोरगुल है, शहर की जो नॉइस है, पोल्यूशन है, उनसे थोड़ा दूर है, बट बहुत खूबसूरत लोकेशन है। खूबसूरत है, जैसे कि इनका टैगलाइन भी इन्होंने रखा है, होम फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल, दैट एक्चुअली कनेक्ट्स टू दिस प्लेस, कीपिंग अवे फ्रॉम द बिजी स्ट्रीट्स एंड ऑल। इट शुड बी अ पीसफुल इन्वायरमेंट दैट आई वुड गेट हियर। वो इसी उम्मीद से यहाँ बुक किए हैं और आई थिंक इट शुड गो द सेम वे। बिल्कुल, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू प्रॉपर्टी सर, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द आप श्रीनिकेतन में मूव इन कर सकें। थैंक यू सो मच। मेरे साथ अभी गौरेंद्रनाथ मुखर्जी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिया है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने श्रीनिकेतन को क्यों चुना, और ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो करीब शहर से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, तो ये प्रॉपर्टी क्यों, और जो डिस्टेंस शहर से है ये कितना आपको फीजिबल लग रहा है? एक्चुअली डिस्टेंस जो है इट इज़ वेरी माइनर डिस्टेंस। शहर में जो शाउट है उससे बेहतर है कैमनेस की, कूलनेस की और सोशल एटमॉस्फेयर की, which attracts me a lot. That's why I choose this spot. और सर, यहाँ पे जैसे कि आपने बोला जो एम्बियंस है, जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, हम अगर देखें तो बाजू में ही यहाँ पे रविशंकर जी का एक आश्रम भी है, तो एक यहाँ पे आते ही एक पॉजिटिव वाइब्स भी सभी को मिलता है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Obviously positive vibes तो है। According to वास्तु, so far as I know, जिस जमीन के ऊपर खड़ा होके अपना हार्ट ये कहेगा कि वाओ, दैट्स द फाइनेस्ट स्पॉट टू बिल्ड अप योर ओन प्रॉपर्टी, दैट इज अकॉर्डिंग टू वास्तु। दिस इज सच ए स्पॉट जहाँ ऑटोमेटिकली एक वाओ वर्ड्स अपने आप निकल आता है बाई ओवरव्यूइंग द एंटायर एनवायरमेंट। सो दिस इज द मेन रीजन। और सर, आपने ये प्रॉपर्टी पहली बार कब देखा था, और उसके कितने दिनों बाद आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यहीं पे प्रॉपर्टी लेना है? मैंने ये प्रॉपर्टी फर्स्ट देखा था सितंबर महीना की फर्स्ट वीक में जी। When I came to know it's a controlled by the Begraj group. Begraj itself an icon to the property development industry, जी। which satisfies me first.
Secondly, whenever I visit this spot, I got each and every answer of my question, and each and everything is clear. Whenever I search net, as told me it's a WB Hira approved project, I got that. I got each and every papers. They fulfill my all demands other than the scheduled. So it's amazing. अपना टॉयलेट सब मनी दे के अपना घर बना रहा हूँ, सो ऑटोमेटिकली वो अपना मर्जी से ही होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. अगर रेंटल क्वार्टर है तो उसमें एडजस्टमेंट की सवाल पैदा होता है, लेकिन जब अपना घर है उसमें तो एडजस्टमेंट तो किसी के साथ है नहीं. सो ईच एंड एवरीथिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर व्हाट आई डिजायर. दैट्स व्हाई विद इन अ मंथ I have completed my process. I have already booked. Sale agreement has been done. It is totally under process. So congratulations sir for your new property. और बहुत ही खूबसूरत जगह है और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही जल्द यहाँ पे मूव इन कर सकें और यहाँ का जो एम्बियंस है इसे एंजॉय कर सकें. हमने अभी तक बात की उनसे जो यहाँ पे फ्लैट लेने वाले हैं, मगर असली फीडबैक तो उन्हीं से मिलेगा जो यहाँ पे रह रहे हैं और रह चुके हैं. तो फिलहाल मेरे साथ है विशाल जी जो यहाँ के रेसिडेंट हैं. हम उनसे बात करेंगे और जान लेंगे कि यहाँ पे रहने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो सर आप हमें बताइए आप यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं? तकरीबन 2 महीने. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. ये जो लोकेशन है विच इज जस्ट एडजेसेंट टू ये मंदिर, दिस इज कॉल्ड मनोन्मणि मंडप एंड ये रविशंकर जी का आश्रम है, श्री श्री रविशंकर जी का. तो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट आउट हियर. पीपल डिस्ट्रेस होने का इससे बेहतर जगह नहीं है. तो सर एक बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है यहाँ का, जैसे कि आपने बताया पास ही में एक मंदिर है. और लोकेशन की भी बात की जाए बहुत शांत है लोकेशन और बहुत खूबसूरत सा एक माहौल है यहाँ का. तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए. दिस इज समथिंग लाइक लिविंग आउटसाइड द सिटी एंड विद इन द सिटी एज वेल, क्योंकि हम शहर से दूर नहीं है. जस्ट यहाँ से जलपाई मोड़ जस्ट 5 किलोमीटर्स है. 5 किलोमीटर में हार्ट ऑफ द सिटी में हम पहुँच जाते हैं. बिल्कुल. और एक मन को भी एक सुकून मिलता है और शांति भी मिलती है यहाँ पे रह के. मैं मुझे आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है, हाँ, लाइक 1 आवर और हाफ एन आवर, बट बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब यहाँ का है. It is only because of this meditation hall. Here people from all sects of society come, they sit and meditate, and this is a very magnificent structure. And in fact, lot of meditations happen out there. उसकी vibration flows throughout. इसकी वजह से anyone who comes over here and stays, वो ऑटोमेटिकली उसके पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर इम्बाइब होने शुरू हो जाएंगे. बिल्कुल सर. हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इसे आप एंजॉय करते रहिए और आपका जो स्टे है वो और भी खूबसूरत हो और भी एंजॉयफुल हो. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. आज का हमारा लोकेशन है सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज रीजन. And one particular property that really stood out to us there was Sriniketan by PRM Begraj Group. और हम पहुंच गए थे साइट पर और आपने देखा भी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और करीब 2 से 3 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगा एंड रेडी टू मूव इन हो जाएगा. तो इसीलिए हमने सोचा कि साइट विजिट तो हो गया तो क्यों ना उनके जो डेवलपर है उनसे बात किया जाए. तो फिलहाल हम हैं PRM ग्रुप के ऑफिस में और हमारे साथ है मिस्टर उत्सव मित्तल, द डायरेक्टर ऑफ PRM ग्रुप. हेलो सर. थैंक यू. सर, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड अबाउट श्रीनिकेतन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि PRM ग्रुप इज़ अ नेम टू बी रिकॉर्ड इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. सो इतने सालों का जो लेगेसी है, प्लीज़ टेल अस अ बिट अबाउट द जर्नी ऑफ दिस ग्रुप. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया खबर समय का. उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया. उन्होंने समझा कि दिस प्रॉपर्टी इज़ वर्थ फीचरिंग इन योर शो, सो थैंक यू वेरी मच.
सो हमारी जो शुरुआत हुई है बेसिकली हम लोग राजस्थान से हैं. सो इन द अर्ली 80s माई फाउंडर लेट श्री बेगराज अग्रवाल जी एंड माई पेरेंट्स दे ऑल मूव टू सिक्किम. तो उधर कुछ साल उन्होंने कुछ कारोबार किया. वी हैड अ स्मॉल रेस्टोरेंट देयर. देन वी हैड आवर सप्लाइज टू द आर्मी ऑफिस एंड थोड़ा गवर्नमेंट सप्लाइज का भी काम था. देन ड्यूरिंग द लेट 80s वी मूव डाउन टू सिलीगुड़ी. देयर वी परचेज्ड आवर फर्स्ट प्लॉट ऑफ लैंड and that is where our construction journey started. So Shanti Apartments है, it's just behind Apollo Towers, माखन बुक के पीछे वाली बिल्डिंग में. So that was our first residential project actually. So that is where it all started. And after that धीरे धीरे आगे बढ़ते गए and there has been no looking back after that by God's grace. तो उसके बाद हमने नीलकमल अपार्टमेंट किया, उसके बाद हमने अपोलो टावर्स किया. सो ऐसे करते करते बस वो शुरुआत होती गई और आज सब आपके सामने. सर जो लेट बेगराज मित्तल जी थे, उन्हें सिलीगुड़ी में लोग विश्वकर्मा के नाम से जानते थे. तो आप हमें थ्रू आउट दिस जर्नी जो लैंडमार्क मूवमेंट्स या लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स थे, इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं. देखिए, एवरीवन हु इज़ इन दिस इंडस्ट्री इज टोटली अवेयर कि ही वॉज अ विजनरी मैन. तो उन्होंने, मेरे नज़र में तो उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट किया है, इट्स ऑल बीन अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट फॉर मी. बट टू पिक आउट अ फ्यू, जैसे ग्रीन वैली है. ग्रीन वैली सिलीगुड़ी का पहला एक प्रॉपर लार्ज गेटेड रेसिडेंशियल कम्युनिटी मैं मानता हूँ जो है. और पहली बार सिलीगुड़ी के लोगों ने उस स्केल का प्रोजेक्ट इतने सारे फीचर्स और एमिनिटीज़ के साथ एक्सपीरियंस किया सिलीगुड़ी में. तब तक जो भी लोग, हम जब बॉम्बे जाते थे, दिल्ली जाते थे, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट वहाँ देखा करते थे. बट वो एक्सपीरियंस हमने लोगों को यहाँ ला के दिया. सो दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ रेसिडेंशियल डेवलपमेंट इन सिलीगुड़ी. आफ्टर दैट वी सी दैट द डेवलपमेंट इन रेसिडेंशियल सेगमेंट में बहुत चेंज आया है. उसके अलावा इफ़ यू सी सिटी प्लाज़ा बनने के पहले जो सिलीगुड़ी का मार्केट था वो मेनली पानी टंकी मोड़ तक ही कॉन्सेंट्रेटेड था. सिटी प्लाज़ा एक पहला इतना बड़ा कमर्शियल प्रॉपर्टी था जो थोड़ा हट के उस तरफ में आया. तो आफ्टर दैट अगेन इफ़ यू सी, उस एरिया का पूरा डायनेमिक्स स्टार्टेड चेंजिंग. properties, more properties started coming up, the property started appreciating. So this is again one of the landmark projects of that time. And if you talk about logistics, we had developed a huge logistics hub in early 2000 that was around 2 lakh square feet. So that in itself, Siliguri had not seen before. So that again is in that sector, logistics sector, that was again a turning point. And then last but not least, if we come down to the Cosmos Mall, never did people even believe कि ऐसा कुछ शायद सिलीगुड़ी में आ सकता है. such a retail experience, इतना बड़ा मॉल. बट वो हमने सिलीगुड़ी को लोगों को दिया. एंड आई थिंक दैट इज़ स्टिल लोगों से काफ़ी जुड़ा हुआ है. इस एरिया का पहला मॉल है. सो आई थिंक दैट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड प्रोजेक्ट्स ऑफ सिलीगुड़ी. एंड उसके बाद अगेन इफ़ यू सी आइनॉक्स सबसे पहले इधर आया, देन द वेगा सर्कल मॉल, एंड देर आर मेनी मोर प्रोजेक्ट्स. बट टू पिक आउट अ फ्यू, जैसे मैंने आपको बोला, आई थिंक दीज प्रोजेक्ट्स आर डेफिनेटली द लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स. सर, जैसा कि आपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला, तो करेंटली व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स PRM इज वर्किंग ऑन, एंड आगे हमें और क्या PRM से मिलेगा? देखिए, वी आर इनटू ऑल सेक्टर्स बेसिकली. इधर अगर आप रेसिडेंशियल की बात करें तो आप श्रीनिकेतन होके आए हैं जी. श्रीनिकेतन है. वी आर इनटू अफोर्डेबल सेगमेंट्स ऑल्सो, इफ यू टॉक अबाउट हाउसिंग, एंड ऑल्सो द लग्जरी सेगमेंट. श्रीनिकेतन हुआ, फिर आनंद विले, वी आर डूइंग आनंद विले ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट. Then we have the luxury projects also in Uttarayan, that is Lumina. So this is one project which is very close to our heart, changing the lifestyles of the people of smaller cities who don't have access to big brands, yes, multiplexes, food courts, So this is what we are trying to look at, reaching smaller cities and giving that experience to all classes of people. So this was about retail. And commercial properties also are hamari. And last but not least, again, logistics. We are into logistics also. Around 2 lakh square feet of logistics we have. So if you see, we are having the entire spread and portfolio of construction sector. So yes. So जैसा कि आपने सुना कि PRM aims
टू प्रोवाइड अ होलसम एक्सपीरियंस, और एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा श्रीनिकेतन में। तो आइए बात करते हैं श्रीनिकेतन के बारे में। सर, अगर आप हमें द विजन बिहाइंड श्रीनिकेतन के बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ग्रुप की जो हमारी जर्नी की शुरुआत हुई है हमेशा कुछ प्रिंसिपल्स पे ही जुड़ी हुई है, क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी, एंड यू नो वी हैव ऑलवेज ट्राई टू गिवन समथिंग न्यू टू द पीपल ऑफ सिलीगुड़ी। सो दिस इज़ अगेन यू नो, जब आर्ट ऑफ लिविंग एंड टेम्पल बना तब हमने उधर विलास के कंस्ट्रक्शन किए विच गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो तब हमें ऐसा लगा कि वी शुड डू समथिंग विद द मासेस ऑल्सो, ऐसा कुछ करे कि जो हर किसी के रीच में हो। तब हमने सोचा कि क्यों ना एक मास रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट करे जो सबको ही को रीच में हो, बट उसमें फैसिलिटीज़ इस तरह से दी गई हैं कि मतलब यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट कि मतलब ये वाकई में अफोर्डेबल है कि नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आवर एम वाज, कम से कम दाम में अफोर्डेबल से अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी के घर दे जाए विथ ऑल वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़। सो दिस वाज व्हाट आवर विजन वाज फॉर श्रीनिकेतन। सो आपने देखा भी कि श्रीनिकेतन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपको सब फैसिलिटीज़ मिल रही है, और लोकेशन इज़ very near to the city but also gives you a beautiful ambience and surrounding. सर, हमारे दर्शकों ने तो प्रॉपर्टी देख ही लिया है, तो दर्शकों के लिए अगर वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, श्रीनिकेतन हो या फिर दूसरे प्रॉपर्टीज़ जो PRM लेकर आ रहे, सो उनके लिए आप अगर कुछ मैसेज दे दें। देखिए, कोविड के दौरान हम सब ने रियलाइज़ किया कि हाउ इम्पोर्टेंट आवर होम इज़। कोविड के पहले तो शायद हम इतना टाइम स्पेंड करते ही नहीं थे अपने घर पे, तो कोविड मेड अस रियलाइज नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर होम। सो राइट नाउ अगर आप बैंक इंटरेस्ट देखते हैं, इट इज़ एट एन ऑल टाइम लो। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू यू नो एक्चुअली मूव इन टू अ न्यू प्लेस। सो अगर आप श्रीनिकेतन में जाते हैं तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्रोजेक्ट। इट इज़ वेरी क्लोज टू द मेडिकल कॉलेज। दैट एरिया इज़ कमिंग अप इन अ बिग वे। लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग देयर. And you know, I think this is if you ever had to move out and buy a house, I think this is perhaps the best time to do it, given all the external factors. So I would urge all of you, whoever is looking to to move to a new house, buy a new property, shift from an existing one, I think this is perhaps the best time to go and get a property. थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और ख़त्म करने से पहले कोई आखिरी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है खबर समय का और GFS का, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। टुडे आज की ज़रूरत है कि जो बायर्स है जितना ज़्यादा जाने उतना ही उनके लिए बेहतर है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर द कस्टमर्स to get educated. Today so many properties are coming up, there are so many people associated in the industry. So ये एक मौका है उनके लिए कि थोड़ी और डीपली चीज़ों को समझ सके, as you are interviewing the developers also directly. So sometimes it is not possible for all the buyers to meet the developers directly, but I hope this gives them an opportunity to indirectly interact with the builders also. So I think overall it is a very good initiative. It will help the customers a lot in taking a correct decision for buying the property. And also as the festive season is approaching, so greetings from the PRM group to all the viewers watching this show, and we hope that we have some sort of association with you in the coming future. Thank you. थैंक यू सो मच सर। तो आपने सुना प्रॉपर्टी के बारे में, और साथ ही में हमने बिल्डर से भी बात की, एंड दिस शो इज़ अ प्लेटफॉर्म टू नॉट जस्ट मेक यू अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टी बट ऑल्सो अबाउट द डेवलपर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो देखते रहिए हमारे साथ प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। आपने लोकेशन देखा, आज का जो हमारा लोकेशन था इट वाज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज रीजन, और आज हम गए थे श्रीनिकेतन में, विच इज़ अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अ ब्यूटिफुल लोकेशन। एक ऐसा लोकेशन है विच नॉट ओनली गिव्स यू अ गुड एम्बियंस बट बल्कि इट इज ऑल्सो क्लोज टू द नेचर एंड गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव वाइब। तो हमने बातचीत की बिल्डर से भी, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन का पता चला कि श्रीनिकेतन आपको क्या देने जा रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज राइट नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन, और 2 से 3 साल के अंदर दिस प्रॉपर्टी विल बी रेडी टू मूव इन। उसके बाद वी कैन सी द amenities they are trying to put up and the entire property that will be ready to move in within 2 to 3 years for the buyers.
दिस शो इज अबाउट योर होम। सो GFS Realtors आपके लिए लेकर आ रहा है एक अनोखा फोटो कॉन्टेस्ट, जिसमें आप आपका जो रिश्ता है अपने घर से और परिवार से वो दर्शा सकते हैं, क्योंकि घर और परिवार दोनों ही दिल के बहुत करीब होता है। In this photo contest, the rules are very simple. All you have to do is click a picture with your family in your home and send us your pictures in the WhatsApp number 9733071111. Please send your picture with your family in your home in the given number और साथ ही में अपना नाम और एड्रेस भी जरूर भेजिएगा। And the said picture will be shared through the page of GFS Realtors, and the picture that gets the most likes and shares will be counted as the winner for the said photo contest. और साथ ही में जरूर यूज कीजिए #GFS Realtors, #खबर समय and #मेरा परिवार मेरा घर। So this photo contest will be purely based on the likes that one gets on the page of GFS Realtors. So please send us your entries. This contest starts from this episode and will be continued till Dhanteras. So jaldi se jaldi apna entries bhijiye in the given number, and don't forget to mention your name and address with the said hashtags. And rules जानने के लिए आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर एक एपिसोड में आपके लिए रहेगा एक खास ऑफर, जो सिर्फ और सिर्फ खबर समय के द्वारा आपको मिलेगा। तो आज का हमारा ऑफर है फॉर द प्रॉपर्टी श्रीनिकेतन। द प्रॉपर्टीज अवेलेबल एट श्रीनिकेतन इज 2200 पर स्क्वायर फीट। मगर आज का जो ऑफर है उसमें आपको सेम प्रॉपर्टी मिलेगा एट 2150 रुपीज पर स्क्वायर फीट। And this offer is valid for this particular month for the viewers of खबर समय। और इसके बारे में और भी जानकारी लेने के लिए और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो ये था हमारा आज का एपिसोड ऑफ द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। आई होप आप सभी को आज का एपिसोड आज पसंद आया है, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फीडबैक और सजेशंस प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट योर फीडबैक एंड योर सजेशंस इन आवर अपकमिंग एपिसोड। प्लीज बी विद अस और देखते रहिए दी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात एवरी संडे 12 noon, और साथ बने रहिए हमारे इन आवर एवरी अपकमिंग एपिसोड। देखते रहिए हर समय खबर समय।